गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तुम लोगों को जेई मेंस के टॉपिक में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है? कौन सा टॉपिक हो गया तुम्हारे बैच में? सेट्स एंड रिलेशंस हो गया है, पढ़ना है? हो गया है सर, सेट्स एंड रिलेशन। ओके। So sets में last thing we did was number of elements in A union B union C. सर सेट्स हो गया, रिलेशंस नहीं हुआ है। अच्छा, ओनली सेट्स हुआ है, रिलेशंस नहीं हुआ है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग भी नहीं हुआ होगा फिर तो? यस सर। ओके, ओनली सेट्स डन ना। तो लेट्स बिगिन विद रिलेशन। एंड बिफोर रिलेशन, मतलब ये रिलेशन में ही है मेन टॉपिक, जो मेन हेडिंग है वो तो रिलेशन ही है। But first point in this case is Cartesian product. मैं ये जो नोट्स हैं वो तुम्हारे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो तुम लोग बस समझते जाओ। स्टार्टिंग में इसमें थोड़ा सा भी थ्योरी है, बट मेनली जो अपन क्वेश्चंस करेंगे वो तुम लोगों को सॉल्व करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स, let there be two sets, set two non-empty sets A and B. Non-empty होना जरूरी है। If A and B are two non-empty sets, then Cartesian product of these two sets is defined as A cross B, and A cross B is equal to ordered pair A comma B, where A is an element of capital A and B is an element of capital B. In this case, I have used the word ordered pair. That means order of A and B is important here. First element belongs to first set and second element belongs to second set. That means B cross A will be a different set. Let's say P comma Q ordered pair, in which P belongs to capital B and Q belongs to capital A. And यहाँ से क्लियर होगा कि in general A cross B is not equal to B cross A. For example, let's say set A is 1, 2, 3 and set B is A comma B, and we have to write A cross B. So A cross B will be equal to 1 comma A, 1 comma B, 2 comma A, 2 comma B, 3 comma A, 3 comma B. तो अभी ये जो मैंने बोला है और जो लिखा है उससे A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये चीज क्लियर है? एनी डाउट? एज यू नो दैट सेट्स एंड रिलेशंस आर ओनली इन जेईई मेंस, तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। जेईई में भी कोई खास टफ क्वेश्चन इसमें आता नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है कोई भी क्वेश्चन, इसका सिंपल सा चैप्टर है। तो A क्रॉस B जो है उसका डेफिनेशन इस तरह से है। ऑब्वियसली B क्रॉस से फाइंड करेंगे तो फिर A कॉमा 1 B कॉमा 1 टू A कॉमा 2 B कॉमा 2 A कॉमा 3 एंड B कॉमा 3, इस तरह के 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब इसमें नोट 1 that if number of elements in set A is equal to P and number of elements in set B is equal to Q, then number of elements in A cross B will be equal to, बोलो, if number of elements in set A is equal to P and number of elements in set B is equal to Q, then total number of elements in A cross B will be equal to P into Q. P cross Q. P into Q, because every element is of the form of an ordered pair. Ordered pair means this X has 3 options in this case and this Y has 2 options, and P&C में अपन ने पढ़ी रखा है, तो इन दोनों के नंबर ऑफ वेज को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड इफ set A has P and B has Q elements,
then total number of elements in set A cross B will be equal to P into Q. इसमें बोलता हूँ and total number of subsets of A cross B will be equal to, if A cross B has 2P into Q elements, then total number of subsets of A cross B will be equal to 2 raised to power p q. 2 raised to power PQ. If any set A has m elements, then total number of subsets of this set is 2 raised to power m. So similarly, since A into B, A cross B set has P into Q elements, therefore total number of subsets will be equal to 2 raised to power PQ. Since अभी तुम लोगों को ordered pair word तो क्लियर होगा, तो जैसे अब इसमें मतलब एक सिंपल सा पॉइंट है, ऑर्डर्ड पेयर में सिंस ऑर्डर मैटर करता है, तो इफ 2x minus 3 4y plus 7, this is an ordered pair which is equal to 5 2, then find value of x and y. तो obviously x is equal to, देखो 4 आ रहा है, y is equal to -5/4 आ रहा है. ठीक है, कि हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर लिया और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कंपेयर कर लिया. तो ऑर्डर पेयर में ऑर्डर का अपन को ध्यान रखना है. कई बार अभी तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की बात की है. कई बार डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन बोले कि कोई एक सेट कोई एक सिस्टम है जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट की बात की है, तो इस वाले केस में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की फॉर्म में आ जाएंगे, सच दैट A belongs to A, B belongs to B, C belongs to C. तो जैसे कि अपन जो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हम कोई पॉइंट x, y लेते हैं, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट वाला सिचुएशन हो गया, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट x डायरेक्शन का और सेकंड एलिमेंट y डायरेक्शन का है, और ये हम r क्रॉस r सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर. एंड 3D सिस्टम को हम r क्रॉस r डायमेंशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज इन दिस केस जो पॉइंट आता है वो x, y, z आता है. तो ये वाला x फर्स्ट सेट से, y सेकंड सेट से और z को थर्ड सेट से लिया है. बस इतना ही यूज है अपन का कार्टेशियन प्रोडक्ट का. अब इसका रिलेशन में क्या यूज है? रिलेशन इज if a relation R is defined from set A to set B, then it is denoted as R colon A arrow B. और ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है, ये इसका मीनिंग यही है कि रिलेशन का नाम तो R है एंड रिलेशन R is defined from set A to set B. तो R is defined from set A to set B. Then R is subset of A cross B. और इसका सिंबल फॉर्म तुम्हें ऑलरेडी पता है. तो रिलेशन कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस यही है कि अगर हमें किसी भी एक रिलेशन R को फ्रॉम सेट A टू सेट B डिफाइन करना है, देन R, दैट रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. फॉर एग्जांपल अभी जो हमने लिया था वही ले लेते हैं कि सेट A लेट्स से 1, 2, 3, सेट B इज A, B. तो any relation R defined from A cross A to B can be written as 1, A, 2, A. बस खत्म. तो ये कोई भी इसके जो 2 raised to power 6 सबसेट्स बनेंगे, उनमें से कोई भी एक सबसेट ले लिया तो ये एक रिलेशन बन गया. और ये जो हमने रिलेशन अभी लिखा है, दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ relation, because in this case we have written every element of that relation and separated by comma.
इस रिलेशन को हम एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड एरो डायग्राम इज लाइक दिस। सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है, तो सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में ए बी एलिमेंट्स हैं, और जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है उसमें क्या है कि 1 इज रिलेटेड विद ए, 2 इज रिलेटेड विद ए, और इस रिलेशन का नाम हमने आर रखा है। तो ये इस रोस्टर फॉर्म का एरो डायग्राम है। तो क्वेश्चन कई बार रोस्टर फॉर्म की जगह एरो डायग्राम बना के भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसका मीनिंग इस तरह से है। और इन दिस केस जैसे हमने बोला, इन दिस केस कि 1 कॉमा ए इज एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 1 आर ए। ठीक है, 1 इज रिलेटेड विद ए अंडर रिलेशन आर। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरो डायग्राम। डोमेन एंड रेंज, बिकॉज तुमने सिंस फंक्शन चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है, तो यू हैव कंप्लीट आइडिया ऑफ डोमेन एंड रेंज, एंड ऑल फंक्शंस आर पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन। डेफिनेशन बता सकता है कोई, कौन से रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं? जो सब एलिमेंट ऑफ ए के लिए डिफाइंड हो। करेक्ट बोला है, बट सफिशिएंट नहीं है। एक और कंडीशन है, And all elements of A or should point to a maximum of one element from B, as in हाँ ये दोनों कंडीशंस है। A relation defined from set A to set B is called a function if every element of A is related with a unique element of B. तो A set के all elements should have images in set B, but there should be exactly one image. This is 1RA, that is element. Here we are seeing that 1 comma A ordered pair is an element of this set. Ultimately हमने जो definition दिया है, according to this definition R is a subset of A cross B. तो relation R भी एक set ही है, every subset is a set. तो relation R एक set है, और इस relation के जो इस set के जो elements हैं वो elements ordered pair की form में है। तो 1 comma A is one element, ordered pair 1 comma A is one element, and this is an element of set R. तो 1 comma A belongs to set R, and this is also denoted as 1 R A. That one element 1 is related with A under relation R. ठीक है? पेज 2 ये है। sir, you will be sending the slides, right? हाँ, मैं इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है वो तुमको सेंड कर दूंगा। Okay, sir, thank you. तो रिलेशन का जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी बात है कि इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी in that order. And if in this example relation R is defined by this, then this relation can also be represented by arrow diagram. और arrow diagram हमने इस तरह से बनाया है कि जो elements हमने relate किए हैं, 1 का relation A से है तो 1 के साथ A तक का arrow बनाया है, 2 का relation भी यहाँ पे A से है तो 2 का A के साथ arrow बनाया है। और अभी हम बात कर रहे थे कि डोमेन और रेंज का। मैं इसको जो कोऑर्डिनेशन ग्रुप है उस पर सेंड कर दूंगा। कोऑर्डिनेशन ग्रुप के वो जो तुम्हारे कोऑर्डिनेशन मेंबर्स हैं वो करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स पे शेयर कर देंगे, जो सेंटर मैनेजर हैं तुम्हारे वो सभी लोग। रिलेशन का डोमेन एंड रेंज, कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस, collection of all pre-images are called domain, and collection of all images in this case, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें इस तरह से था 1 2 3 A B, तो और रिलेशन इस तरह से था। In this case domain is this only,
range is this only, and codomain. If a relation is defined from set A to set B, then set B is called codomain. And you know that range is always a subset of codomain. But in this particular case, the function में तो क्या होता है कि if a function is defined from set A to set B, तो ये set A जो है वो complete domain हो जाता है. बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन में ही हम बोलते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड हैव इमेज इन सेकंड सेट. बट डोमेन में डोमेन में ये कंपलसरी नहीं है. डोमेन में ऐसा हो सकता है जैसे इस एग्जांपल में था कि 3 जो एलिमेंट 3 है, दिस एलिमेंट डज नॉट हैव एनी इमेज इन सेट बी, देयरफॉर 3 डोमेन का पार्ट नहीं होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अ रिलेशन R is defined from R to R. अब जेई क्या करता है कि सिंस रिलेशन का नाम R रखा है और सेट ऑफ रियल नंबर भी R होता है, तो जेई सेट ऑफ रियल नंबर का जो R है उसकी वर्टिकल लाइन को या तो डार्क कर देता है, या फिर कभी कभी तुम्हें ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, रिलेशन R is defined this. आई आर टाइप लिख देता है कुछ, आई आर, बट आई आर का मतलब भी सेट ऑफ रियल नंबर ही है. ठीक है. अगर आर का जो वर्टिकल लाइन है उसको डार्क किया है, या फिर आर से जस्ट पहले आई टाइप में यानी कि एक वर्टिकल लाइन बना रखा है, तो इसका मीनिंग सेट ऑफ रियल नंबर ही है. हमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. तो इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट x r y implies that y is equal to x plus 4, x less than equal to 4. अच्छा, मैंने सेट ऑफ रियल नंबर लिया है तो ये तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे. हम यहां पे ले लेते हैं x belongs to n, x less than equal to 4. तो रिलेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी चीज को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा रिलेशन R इज इक्वल टू पुट x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 8. ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया. अब क्वेश्चन है, अगर डोमेन पूछा तो डोमेन में ओनली 1 2 3 4 आएगा. रेंज पूछा तो रेंज में ओनली 5 6 7 8 आएगा. और कोडोमेन पूछा तो कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा. ठीक है. तो ये बेसिक सा एग्जांपल है. डोमेन रेंज में और कुछ खास बात इसमें है नहीं, सिंपल सी यही बातें हैं. बट यहाँ पे बस ये है कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्री इमेजेस इज डोमेन, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस इज रेंज. एंड अनलाइक फंक्शन में तो सेट ए टू सेट बी अगर डिफाइंड है तो सेट ए डोमेन होता है, फिक्स है. बट इन रिलेशन ऐसा फिक्स नहीं है. सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनकी सेट बी में कोई भी इमेज नहीं है वो डोमेन का पार्ट नहीं होंगे. तो ये है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन. नेक्स्ट इज, अभी तक जो मैंने बातें डिस्कस की हैं वो जेई के पॉइंट से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. जेई जो मेनली पूछता है रिलेशन में वो टाइप ऑफ रिलेशन, और उसमें भी पर्टिकुलरली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करता है. तो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिलेशन. इफ अ रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट A, यहाँ पे जो टाइप डिफाइन किया है वो ओनली तभी डिफाइन किया है जब फर्स्ट और सेकंड सेट सेम है. इफ अ रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट A, तो इसको कई बार ये भी बोलता है जी, मतलब इस तरह से भी लिखते हैं. इसका मतलब है कि रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट A या फिर इन सेट A, मतलब कि एक ही सेट का नाम दे रखा है तो सेट A टू सेट A डिफाइंड है. आई आर इज सेट ऑफ रियल नंबर. आई आर या फिर
आर जिसमें आर का जो वर्टिकल लाइन है जिसको डार्क कर दिया, बोल्ड कर दिया, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर। वो जस्ट इसलिए कि रिलेशन का नाम और इसका नाम अलग अलग लगे, तो रिलेशन को अपन जनरली आर बोलते हैं, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर। Relation is R on defined on set A. Relation is defined on set A, and A is non-empty set. Then first type is empty relation. नाम से ही क्लियर होगा. Since relation R is subset of A cross A in this case, relation R is subset of A cross A in this case, and phi is subset of every set. तो A cross A का भी subset होगा phi. Therefore, जो phi वाला एक सबसेट है, that is called empty relation. फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल में अगर डिफाइन किया कि रिलेशन R is defined from set of natural numbers to natural numbers and x r y implies that mod of x minus y is less than 0. इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि R is equal to x comma y such that mod of x minus y less than 0. दोनों सेम ही है. तो this relation R is an empty relation because mod of x minus y cannot be negative. Second relation is universal relation. यूनिवर्सल मतलब ये तो एम्प्टी रिलेशन, तो इसका लोअर एक्सट्रीम हो गया कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है. यूनिवर्सल रिलेशन जो इसका वो है वो अपर एक्सट्रीम है कि अगर आर को हम ए क्रॉस ए ले लें, बट इसका मतलब कि ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए, तो रिलेशन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया आर डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन सच दैट x r y implies that mod of x minus y greater than equal to 0. तो इस रिलेशन में ऑल पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. एंड both empty relation and universal relation are called extreme relations. तो ये दोनों रिलेशंस क्लियर है सभी को, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन. आर क्रॉस ए का जो स्मॉलेस्ट सबसेट है वो तो फाई है जिसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और जो ग्रेटेस्ट सबसेट है वो ए क्रॉस ए है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो दीज टू आर एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है. अगेन जे ने कभी भी एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन की बात आज तक तो की नहीं है, बट बाय चांस कर ले कभी तो इसलिए पता होना चाहिए, बस इंफॉर्मेशन है अपने पास. थर्ड रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन. एंड डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन इज इफ, मतलब जो बेसिक पॉइंट था फर्स्ट पॉइंट वो तो यही है कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, तो हम सारे इसी सिचुएशन में बात कर रहे हैं. तो आइडेंटिटी रिलेशन इज इफ every element of set A is related with itself only. क्या मीनिंग वो भी डिस्कस करेंगे, बट हैंड टू हैंड हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की भी बात कर लेते हैं. फोर्थ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एंड इस यहाँ पे है इफ एवरी एलिमेंट of set A is related with itself. ये दोनों की डेफिनेशन है.
अब दोनों डेफिनेशंस में ओनली एक ही वर्ड का डिफरेंस है कि आइडेंटिटी रिलेशन में तो ओनली वर्ड आ रहा है और रिफ्लेक्सिव में वो ओनली वर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, अब अगर हम इसमें एग्जांपल्स लें कि रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए लेट्स से इज 1, 2, 3 and relation R1 is 1, 1, 2, 2. Relation R2 is 1, 1, 2, 2, 3, 3. And relation R3 is 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 1, 3. तो इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बताओ कि R1 जो है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा या कोई सी में भी नहीं आएगा, सेम R2 और R3। तो फर्स्ट But it won't, R1 के लिए sir, R1 won't come in any one of those. R2 is identity, R3 is reflexive. ओके पहले मैं ओनली भी R1 का आंसर लिख देता हूँ। R1 का आंसर करेक्ट है कि R1 रिलेशन इज नाइदर आइडेंटिटी नॉर रिफ्लेक्सिव बिकॉज R1 सॉरी आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों के लिए कंडीशन था कि एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड विद इटसेल्फ, बट इन R1 3 is not related with 3, hence it is neither identity relation nor reflexive relation। ठीक है, अब R2 का आंसर वापस से बताओ, और लोग भी बताओ ऑप्शन में। मेरा पॉइंट इज कि Both identity. ऑप्शन Sir, R2 Both, sir, can both. be both identity and reflexive, na? एग्जैक्टली मैं यही पूछ रहा था। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव दोनों नहीं है, सेकंड ऑप्शन है आइडेंटिटी है रिफ्लेक्सिव नहीं है, थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिटी नहीं है रिफ्लेक्सिव है, एंड फोर्थ ऑप्शन है आइडेंटिटी भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है। तो ए बी सी डी, R2 का आंसर क्या आएगा? D. R2 is identity relation as well as reflexive relation. Is it clear? And R3? C. C. Reflexive. See, R3 relation is not identity, but it is reflexive. So R2 is identity and reflexive. And this is not identity, but it is reflexive. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बस ये बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडेंटिटी के लिए एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, जेई के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉइंट नंबर 4, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जेई ने पूछा है। पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन जेई ने पूछा है। तो अभी मैं उनको नोट कर देता हूँ। लास्ट पेज, डन। सृष्टि ओके। पॉइंट नंबर 5, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी, बट पॉइंट नंबर 5 इज सिमेट्रिक रिलेशन। If x are y implies that y are x, then R is symmetric relation. In other words, if there exists at least one case when x comma y belongs to R, but y comma x
is not an element of R, then R is not symmetric. Transitive relation. If X are Y and Y are Z, implies that X are Z, then R is transitive. And similarly, if there exists at least one case when X comma Y belongs to R and Y comma Z belongs to R, but X comma Z does not belong to R, then R is non-transitive. ठीक है, तो ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डेफिनेशंस हैं. इफ एक्स आर वाई इंप्लाइज दैट वाई आर एक्स, यानी कि अगर 1,2 इस टाइप का कोई एलिमेंट रिलेशन आर का है तो 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए. एक्स आर वाई तो वाई आर एक्स होना ही होना चाहिए इफ रिलेशन इज सिमेट्रिक. और सिमिलरली फॉर ट्रांजिटिव कि इफ एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड, these two ordered pairs are element of set R, तो x, z भी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए. बट अभी मैं इसका एग्जांपल ये नोट करूंगा. एक लास्ट पॉइंट जो हमें थ्योरी में लिखना है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन. और ये कुछ खास बात नहीं है. इफ relation R is reflexive, symmetric and transitive, तीनों ही कैटेगरी में आ रहा है, then R is equivalence. ठीक है, तो अल्टीमेटली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये 3 जे के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है. और अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल 3 कैटेगरीज में आ रहा है तो रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर वो एटलीस्ट वन ऑफ दीज 3 कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. अब इनके एग्जांपल्स अपन देखते हैं. Check whether this relation is reflexive or not, symmetric or not, transitive or not. रिफ्लेक्सिव का बताओ. रिफ्लेक्सिव कंडीशन था कि every element of set A should be related with itself. तो whether this relation is reflexive or not? Yes, sir. Yes, sir. Because 1R1, 2R2 and 3R3 all 3 cases are present. Symmetric के लिए था कि if X are Y then Y are X must be present. तो is it symmetric or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is symmetric. हम अगर कोई से भी एलिमेंट को x, y कंसिडर करें, अगर हमने इसको x, y लिया तो सिंस 1R1 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 1R1 होना चाहिए. तो मैंने एक मिनट अभी लिखने को मैंने सिंबल अलग अलग लिखा है. इस वाले 1 को ओनली वर्टिकल लाइन से नोट किया है और इस वाले 1 को इस तरह से लिखा है. बट 1 तो 1 ही है तो 1R1 है यहाँ पे प्रेजेंट. तो 1 यानी कि जब भी कोई भी एलिमेंट A, A टाइप का होगा
तो ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट कभी भी सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट के लिए हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करना है, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई हैं ओनली उन्हीं के लिए चेक करना है। तो इन दिस केस 1,3 इज प्रेजेंट, और सिमेट्रिक बनाने के लिए 3,1 इज ऑल्सो प्रेजेंट, या फिर 3,1 is present and 1,3 is also present. Therefore, this relation is symmetric. Or third point, is it transitive or not? Yes. Yes, sir. This is again transitive because 1R3 and 3R1 implies that 1R1 होना चाहिए. XRY and YRZ implies that XRZ होना चाहिए. तो यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो ये भी ट्रांजिटिव की कैटेगरी में भी आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ये रिलेशन? Yes, sir. रिफ्लेक्सिव, No, 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 sir. Not this reflexive. relation is not reflexive because 1R1 2R2 3R3 ये तीनों प्रेजेंट होने चाहिए थे, एक भी नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, Yes, sir. ट्रांजिटिव, Yes. ट्रांजिटिव और लोग बताओ। No, sir. No, sir. Sorry. Transitive sir. is also not there. ट्रांजिटिव नहीं है because 1R3 and 3R1 but 1 is not related with 1, therefore this relation is not transitive but symmetric है। और अगर जस्ट मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये रिलेशन खत्म हो जाता तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होता। इज इट क्लियर? Yes, sir. because one although in elements के लिए symmetric है, but if there exists at least one case where x are y but y is not related with x, then the relation is not symmetric. तो ये relation अगर 2,1 नहीं होता तो ये relation symmetric नहीं होता। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? Suppose the transitive have to check any two elements of the set, right? No, all elements must satisfy that condition that x are y and y are z implies that x are z. If there exists at least one case for which x are y and y are z, but x is not related with z, then that relation will not be transitive relation. If there exists at least one case when x are y and y are z, but x is not related with z, then that relation won't be transitive relation. अभी एग्जांपल लूंगा तो और ट्रांजिटिव क्लियर होगा, बट फॉर दिस क्वेश्चन टेल मी वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो अभी सिंस ये मैथमेटिकल एग्जांपल नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो इस सिचुएशन में हम चेक कैसे करेंगे? देखो अपन को मैंने कहा कि ये चैप्टर बड़ा सिंपल सा है और अपन को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो सिंपल सा मेथड इसमें इस तरह से है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने की जो कंडीशन है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
should be related with itself. तो यहाँ पे हम x r x, x का x से ही रिलेशन का स्टेटमेंट लिख लेंगे. तो स्टेटमेंट क्या बनेगा इन दिस केस? x and x are in same class. और ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही, बिल्कुल करेक्ट बोला. एवरी पर्सन इज इन देयर ओन क्लास. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. इफ गिवन स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू आ जाएगा, देन गिवन रिलेशन इज डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल लूंगा तो क्लियर होगा. बट अगर मैथमेटिकल या वो सॉरी, जैसे हमने लास्ट वाले जो एग्जांपल लिए थे, ये तो सारे एग्जांपल रोस्टर फॉर्म में है. तो रोस्टर फॉर्म में तो हमने ये चीजें चेक की कि 1,1, 2,2, 3,3 लिखा है कि नहीं लिखा है. बट अगर एग्जाम्पल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब कि एलिमेंट्स नहीं गिवन है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो गिवन है, तो फिर हम इस तरह से चेक कर लेंगे कि लेट एक्स आर एक्स. और एक्स आर एक्स की वजह से जो स्टेटमेंट बनेगा, जैसे इन दिस केस बन रहा है कि एक्स एंड एक्स आर इन सेम क्लास, तो हम चेक करेंगे कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू और नॉट. इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, देन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. Second, symmetric relation. Let x are y. This implies that x and y are in same class. From this statement, we can say that y and x are in same class. ये मैंने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया है इसको समझने के लिए. And this further implies that y are x. Therefore, we can say that relation R is symmetric relation because x r y is implying that y r x. तो रिलेशन R को सिमेट्रिक चेक करना समझ आया. अब तुम लोग मुझे ट्रांजिटिव चेक करके बताओ है या नहीं है. Yes, it is transitive relation as well because for transitive we'll consider let no. If a relation is symmetric and reflexive, but it may or may not be transitive. अभी अपन चेक कर लेंगे. But let x r y and y r z. That means x and y are in same class and क्लास जो नॉर्मल स्कूल का क्लास होता है वो y and z are in same class. This implies that since x and y भी same class में, y and z भी same class में, that x and z are in same class. This implies that x are z. Therefore, this relation is symmetric relation. तो ये एक बेसिक मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करने का. तो फॉर रिफ्लेक्सिव विल चेक x r x. फॉर सिमेट्रिक विल assume x r y, and from that if we are able to get y r x, then relation r is symmetric relation. And for transitive, अगर अच्छा कई बार क्या होता है कि जैसे हमने अभी जो स्टेटमेंट लिखा, ये तो बड़ा ही ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट इंप्लाई हो रहा है. बट कई बार या तो हमें डायरेक्टली समझ आ जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट इंप्लाई नहीं हो रहा. अगर कई बार अगर कंफ्यूजन है तो इसका मतलब कंफर्मली ये है कि फर्स्ट से सेकंड इंप्लाई नहीं होगा. कंफ्यूजन तभी आता है जब स्टेटमेंट इंप्लाई नहीं करता. बिकॉज अगर इंप्लाई करना होगा ना तो वो किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन या प्रैक्टिकल सिचुएशन से क्लियर हो जाएगा. मैं भी एग्जांपल और लूंगा. बट फॉर ट्रांजिटिव विल assume that x r y and y r z, एंड इन दोनों के जो कंबाइंड स्टेटमेंट्स हैं उसकी हेल्प से इफ वी आर एबल टू प्रूव that x r z, then that relation is transitive relation. Next question, same situation. सिमेट्रिक लिख दिया क्या मैंने? ओहो,
Set A is set of all human beings. Relation R is defined from set A to set A, and X R Y implies that X is brother of Y. बताओ. So it X is reflexive. Sir, all pardon? three. Set of all human beings. तो बोला गया not reflexive, symmetric and transitive. Okay. Yes, sir. Sir, but symmetric कैसे होगा? एक मिनट रुको. अभी मैं not reflexive, symmetric and transitive, not reflexive, not symmetric and transitive, not reflexive, not symmetric, not transitive. In fact, and third option ले लेते हैं, last option, none of these. अब बताओ ABCD के टर्म्स में. Sir, A. और लोग भी बोलो. 70 स्टूडेंट्स हैं. B. तो करेक्ट आंसर इज B. तो ये तो सभी को क्लियर है. आई होप कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, बिकॉज नो वन इज ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे. सिमेट्रिक कि लेट x r y implies that x is brother of y, but it is not necessary that y is brother of x. और जो अभी बोला भी था किसी ने चैट में, that y may be sister of x. ठीक है, तो ये रिलेशन नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, अभी सभी को क्लियर है कि दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. हाँ, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग एज वेल एज दिस PDF. एंड फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखो ये ट्रांजिटिव है रिलेशन. सभी को समझ आता है क्या? दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव बिकॉज x r y and y r z implies that x is brother of y and y is brother of z. अब देखो यहाँ पे ये चीजें तो हमने अज्यूम की हैं. तो x is brother of y and y is brother of z अगर हमने अज्यूम किया है, तो डेफिनेटली y जो है वो एक मेल मेंबर हो गया, ब्रदर है. अब z जो है ये ब्रदर या सिस्टर में से कुछ भी होगा, बट डेफिनेटली x इज ब्रदर ऑफ z तो बोल ही सकते हैं. Therefore, this relation is transitive relation. अभी क्लियर है सभी को? रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Set A is collection of all lines in a plane and L1 R L2 implies that line L1 is perpendicular to L2. Relation R is defined from set A to set A,
and line the relation is line L1 is perpendicular to L2. Tell me whether it is reflexive or not. Yes, sir. है reflexive? No, sir. No, sir, no, sir. Way perpendicular. Sir. Symmetric or not? Yes, sir. Yes. Yes. Transitive or not? No. No, sir. Any doubt in this question? अगर हमने L1 पर L1 और L2 रिलेशन को L1 पैरेलल टू L2 लिया होता तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है? Tell me Yes. whether it's equivalence or not. Yes, sir. Because ये तीनों कैटेगरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में आ जाएगा. अच्छा, just take the different thing. Question: true or false? If 2 plus 2 is equal to 4, then 3 plus 5 is equal to 8. Is it true or false? False. अरे इसमें क्या गलत लग रहा है? True. ये तो ट्रू है. स्टेटमेंट 2 plus 2 4, 3 plus 5 8. Statement 1. If 2 plus 2 is equal to 4, then 3 into 5 is equal to 8. False. False. Third statement. If 2 plus 2 is equal to 5, then 3 into 8 is equal to 1. ये statement? False. True, right? Because both of them are false. Okay. अगर ये confusion है तो ये बताओ. If 2 plus 2 is equal to 5, then 3 into 8 equals to 24. ये False. This is false. So true, right? Amika? 2 plus. अब ये चीज अब अपन जो अपना मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर है तब डिस्कस करेंगे, बट अभी इसका लॉजिक अभी समझ लेते हैं बिकॉज यहाँ भी यूज आता है. देखो, इफ का मतलब कि वो कंडीशन जो हमें गिवन है, तो हमें 2 plus 2 equal to 4 गिवन है और हमें पता है कि तो सही बात गिवन है. अगर ये सही बात गिवन है तो अपन ये चेक करेंगे कि जो देन के बाद का स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में करेक्ट है कि रॉन्ग है. अगर कोई भी सिचुएशन ऐसा गिवन है जो पॉसिबल है, जो फीजेबल सिचुएशन है, तो फिर देन के बाद का जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ट्रू या फॉल्स जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा. ठीक है. बट ये तो कब बात हुई? जब इफ वाला स्टेटमेंट इज ट्रू. If given statement is wrong, if given statement is not possible, क्वेश्चन बोल रहा है कि if 2 plus 2 equals to 5 और we know that 2 plus 2 cannot be equal to 5, तो इसका मतलब, बट क्वेश्चन ने बोला कि if it is equal to 5, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन एक इमेजिनरी वर्ड में चला गया. और अगर क्वेश्चन एक इमेजिनरी वर्ड में चला गया, बिकॉज रियल वर्ड में पॉसिबल नहीं है, और ये क्वेश्चन इमेजिनरी वर्ड में चला गया, तो इमेजिनरी वर्ड में कुछ भी पॉसिबल है. तो हमें फिर देन के बाद क्या लिखा है चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ये स्टेटमेंट्स को हम ऑलवेज ट्रू ही बोलेंगे. इफ 2 plus 2 is equal to 5, देन मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया. सही बात है. इफ 2 plus 2 is equal to 5, देन दिल्ली इज इन मुंबई. सही बात है. मतलब कुछ भी लिखा हो तो वो स्टेटमेंट ट्रू की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि ये सिंस रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, तो और ये इफ के साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि हम इमेजिनरी वर्ड में चले गए. इफ वी आर गोइंग इनटू इमेजिनरी वर्ड, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट वर्ड. अब इसका यूज रिलेशन में क्या है उसके लिए. ए जो है, मान लिया कुछ भी इस तरह से, R is defined A to A, R is equal to 5. Then R is, first question, reflexive. एक मिनट. Second question, symmetric. Third question, transitive.
तुम्हें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. रिलेशन आर इज एन एम्प्टी रिलेशन. तो एक बार तुम लोग सोच लो, मैं जितने लास्ट स्लाइड शो करता हूँ. लास्ट स्लाइड ये है. R set A is any non-empty set and R is an empty relation. First question, relation R is reflexive. Is this statement is true or false? Tell me, relation R is reflexive relation. Is it true or false? False. False. Because if a relation R, if this relation R is reflexive, then A must be related with A, B must be related with B, and C must be related with C. But यहाँ पे तीनों में से कोई भी नहीं है, तो relation reflexive नहीं है. Is it symmetric or not? No. Sorry, true. और ये वाले दोनों पॉइंट्स, हाँ, रीजन जो बोला है ना, ये बिल्कुल करेक्ट बोला है कि इफ वाला ही स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, तीर्थ ने जो बोला है. बिकॉज सिमेट्रिक के लिए हम इफ या लेट एक्स आर वाई करेंगे, लेकिन हमारे पास सिंस रिलेशन आर इज एन एम्प्टी रिलेशन, अज्यूम करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, तो इम्प्लीकेशन यानी कि देन के बाद कुछ भी होगा वो ट्रू ही आने वाला है. देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड सेम रीजन इज फॉर ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव में भी हम लेट एक्स आर एक्स अज्यूम करते हैं, सॉरी एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड अज्यूम करते हैं. और सिंस दीज टू केसेस आर नॉट पॉसिबल, तो फिर इम्प्लीकेशन के बाद कुछ भी हो ट्रू ही कंसिडर करेंगे. तो दिस रिलेशन इज, दैट इज एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, A is collection of all human beings. अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल सिचुएशन पे ही आते हैं क्या, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आता क्या? अभी हम करेंगे एक बार सारे ये प्रैक्टिकल केसेस कवर कर लेते हैं. रिफ्लेक्सिव तो फॉल्स है. Sir, I didn't understand why reflexive is false. Reflexive is false because A is not related with A. If there exists at least, जैसे एक सिंपल सी बात ये बताओ कि x square is greater than 0 for every x belongs to R. This statement is true or false? सभी लोग बताओ. True. और लोग भी तो बताओ. True. तो false होगा ना, zero तो नहीं false, होगा. right? Yeah, X equals false. 0. False, no? हाँ. If there exists at least one case for which given statement is not true, then that statement will be considered as false, because हम किसी भी statement true तभी बोलेंगे when that statement is always true. और यहाँ पे only zero की वजह से ये statement false की कैटेगरी में आ गया. तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि if there exists at least one example for which given condition of respective relation is not true, then that relation will not fall in that category. So for reflexive, it is necessary that every element must be related with itself. But in this case, we have taken the example that A is not related with A. Therefore, relation R is not reflexive. In we can also take B is not related with B. We can also take C is not related with C. But only one example is sufficient to prove that this relation is not reflexive. ठीक है. जो हमने भी सिमेट्रिक बोला है, इसको भी हम रिवर्स मेथड से प्रूव कर सकते हैं. रिवर्स मेथड क्या कि let's suppose that this relation empty relation is not symmetric, but to prove that this relation is not symmetric, we have to find at least one example for which
x are y but y is not related with x. बट हमें ऐसा कोई एग्जांपल मिलेगा ही नहीं जब x आर y है बट y आर x नहीं है, तो हम इस रिलेशन को नॉट सिमेट्रिक नहीं बोल सकते. दैट इज, इस रिलेशन को हमें सिमेट्रिक ही बोलना होगा. इस चीज को मैं और क्लियर कर रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल से. सेट A is collection of all human beings. Relation R is defined from set A to set A, and X R Y implies that X is wife of Y. ये नॉर्मल सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं. दैट मीन्स कि अगर हमने किसी को वाइफ बोला है तो दैट मस्ट बी अ फीमेल, किसी को हस्बैंड बोल रहे हैं तो दैट मस्ट बी अ मेल. तो टेल मी वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव में कोई देन स्टेटमेंट होता ही नहीं. हाँ, रिफ्लेक्सिव में कोई देन स्टेटमेंट होता ही नहीं है. आंसर बोला गया नन. और लोग बताओ. ऑब्वियसली ये रिलेशन आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. Because X is wife of X, not possible. Second case, symmetric. No, sir. Let X are Y, that X is wife of Y, then Y is wife of X, not possible. तो symmetric भी नहीं है. But this relation is transitive relation. जो किसने आंसर दिया है? प्रजस ने आंसर भी दिया है. अच्छा, तीर्थ ने भी दिया है. This relation is transitive relation because क्या बोलेंगे हम? Let X are Y and Y are Z. ये तो बोलेंगे. That means X is wife of Y and Y is wife of Z. अगर हमने X is wife of Y बोल दिया तो इसका मतलब कि Y एक मेल पर्सन, मतलब मेल मेंबर हो गया. तो फिर सेकंड स्टेटमेंट Y is wife of Z is not possible. If assume करने वाला कंडीशन is not possible तो हम imaginary word में चले गए, and in imaginary word everything is true. Therefore this relation is considered as transitive relation. ठीक है. तो ये अपन ने जो डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो कवर किए. अब मैथमेटिकल एग्जांपल की बात कर लेते हैं. जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बट कभी कभी कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल के लिए सोचना पड़ सकता है, कभी कभी, नॉट ऑलवेज. तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड कर दूं. अभी तक की बातें सारी क्लियर है? सर ये ट्रांजिटिव आपको समझा सकते हो? ट्रांजिटिव में हमने बोला कि हम ट्रांजिटिव के लिए एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड ये वाला कंडीशन एज्यूम करते हैं, जो अपना बेसिक मेथड है. अब हमने इसका स्टेटमेंट लिखा तो हमने बोला कि x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z. ये हम एज्यूम कर रहे हैं. तो हमने एज्यूम क्या किया कि x इज वाइफ ऑफ y, इसका मतलब कि x फीमेल और y मेल है, एंड y इज वाइफ ऑफ z पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज हमने y को मेल बोल दिया. तो एज्यूम जिस चीज को किया है वो ही पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब कि ये कंसिडर करने के लिए हमने एक इमेजिनरी वर्ड कंसिडर किया, और अगर इमेजिनरी वर्ड में कंसिडर किया हुआ है तो एवरीथिंग इज ट्रू. देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. अभी जो ठीक है. ओके. तो ये मैं एक बार इनको सेव कर लेता हूँ. सेव. तो ये तो है अभी तक के ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन शुरू करते हैं कि R is defined from set of natural number to set of natural number. X R Y implies that X is greater than equal to Y. तो बताओ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. RST.
सर तीनों तीनों है। सिमेट्रिक कैसे है? सिमेट्रिक नहीं होगा नहीं ना। होगा ना सर, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो अगर हमने सिमेट्रिक नहीं बोला है, और अभी तो चलो फिर भी क्लियर है कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो वी कैन नॉट से दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। बट मैंने कहा कि अगर कभी कोई कंफ्यूजन है ना, तो हम एग्जांपल से इजीली बोल सकते हैं। इन दिस केस दैट 2 are 1 but 1 is not related with 2, therefore this relation is not symmetric। ठीक है, तो स्टेटमेंट को फॉल्स बोलना है, मतलब कि किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं बोलना है, तो एग्जांपल से उसको एंश्योर कर लो। और अगर ट्रू बोलना है तो फिर उसको ऑलवेज ट्रू होगा ये एंश्योर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। R is defined from set of real number to set of real number and x or y का मीनिंग है 1 plus x into y is greater than 0। Again same question, reflexive, symmetric, transitive। Oh, sir, reflexive and symmetric, but not transitive. Yes. हाँ सर। तो तुमने बोला नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव के लिए अगर हम वही की लेट x आर y and y आर z, तो विल से दैट 1 plus x into y greater than 0 and 1 plus y into z greater than 0। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 1 plus x into z greater than 0 है या नहीं है, ये अगर इम्प्लाई कर सकते हैं तो बताओ कैसे करेंगे, इम्प्लाई नहीं कर सकते तो बताओ कैसे नहीं करेंगे, मतलब कैसे प्रूव करोगे कि these two conditions do not imply this third condition। तो अगर अभी हमने कहा कि अगर स्टेटमेंट को ट्रू होना होगा, तब तो हमें डायरेक्टली कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा समझ आ जाएगा इजीली, जिससे कि वो इम्प्लाई हो जाएगा। जैसे कि इन दिस केस था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, तो हमने इन दोनों इनइक्वेशंस को सिंपली ऐड कर दिया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z आ गया। इन दिस केस हमें इतना ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा, तो जब हमें कंफ्यूजन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसी सिचुएशन में होगा जब वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहा होगा। तो यानी कि रिलेशन मोस्ट प्रोबेबली ट्रांजिटिव की कैटेगरी में नहीं आ रहा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ अभी मोस्ट प्रोबेबली। इस चीज को एंश्योर करने के लिए अब तुम एक ऐसा एग्जांपल सोचो in which x are y and y are z but x is not related with z। ऐसा एग्जांपल तुम्हें सोचना है जिससे कि हम कंफर्म हो जाएं। बताओ सारे नंबर्स x क्या y क्या z क्या। x आर y एंड y आर z होल्ड करना चाहिए, बट x आर z होल्ड नहीं करना चाहिए। Sir, if y is 0 and x and z are positive, negative. Correct. That 1 are 0 and 0 are -2, but 1 is not related with -2। ठीक है, तो अगर हमें कंफ्यूजन है तो हम ऑलवेज ऐसा एक एग्जांपल कंसिडर कर लेंगे जिससे कि वो उस कैटेगरी में नहीं आए। तो इन दिस केस ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, तो ट्रांजिटिव नहीं होने का मेथड क्या होता है कि x आर y एंड y आर z बट x इज नॉट रिलेटेड विद z। तो हमने जो भी एग्जांपल लिया है कि 1 इज रिलेटेड विद 0 एंड 0 इज रिलेटेड विद -2, बट ये देखो दोनों जो कंडीशन है
ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट ये वाला जो है पुट करोगे तो 1 प्लस 1 इंटू -2 पॉजिटिव रॉन्ग। तो ये एग्जाम्पल से हमने प्रूव कर लिया कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। समर्थ ने बोला x को -1, y को हाफ और z को 2। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन R is defined from set R to set R, set of real number to set of real number, and relation R is equal to x comma y such that x minus y plus √2 is an irrational number. बताओ। Not symmetric, यानी कि you are saying that it is reflexive as well as transitive. Also, that notation means it belongs to like Irrational number. Okay. हाँ, QC is set of irrational number. लग रहा है क्या वाली बात होती है, कंफर्म होना चाहिए ना कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ओके, अब देखो कई सारे लोगों ने आंसर ट्राई किया है। नॉट सिमेट्रिक बिकॉज x minus y can be -√2 but y minus x will be √2, करेक्ट। बट एग्जाम्पल प्रॉपरली अपन x को और y को ही फिक्स कर लें। अगर तुम्हें जैसे बोलना है कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो जस्ट give an example in which x are y but y is not related with x. तो आंसर इस तरह से है कि रिफ्लेक्सिव x are x, this implies that x minus x plus √2 is an irrational number, which is always true. So this relation is reflexive, symmetric. X r y, x minus y plus √2 is an irrational number. अब यहाँ से y minus x plus √2 is an irrational number, अभी कोई से भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से तो नहीं आएगा, तो ये इम्प्लाई नहीं कर रहा। बट अगेन कि हमें इतना श्योर नहीं कि पता नहीं, हो सकता है आ जाए, तो हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लेंगे। और वो एग्जाम्पल क्या होगा कि √2 are 1 but 1 is not related with √2। देखो ये एग्जाम्पल समझ आ रहा है सभी को। √2 r1, that is √2 minus 1 plus √2 is an irrational number, but 1 minus √2 plus √2 is not an irrational number, therefore relation R is not symmetric. x are y and y are z, यहाँ से बोलेंगे कि x minus y plus √2 is an irrational number and y minus z plus √2 is an irrational number। बट अगेन इन दोनों में कोई सा भी कॉम्बिनेशन लगा के ये नहीं बोल पाएंगे कि x minus z plus √2 is an irrational number। बट अगेन बिल्कुल ही 100% कंफर्म करना है, तो बताओ एग्जांपल ट्रांजिटिव प्रूव नहीं करने के लिए, कि ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा प्रूव करने के लिए।
Even this relation is not transitive. √2 + 1 and √2 - 1. मानवी अगर अपन ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं तो हमें 3 नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, x, y एंड z. √2 R1 and 1 R2 √2, but 1 नहीं, but √2 is not related with 2 √2. देखो एग्जांपल समझ आ रहा है क्या? y0 x पॉजिटिव z नेगेटिव. नेगेटिव पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा बिकॉज यहाँ पे इरेशनल और रैशनल नंबर की बात हो रही है. x को √5, y को √3, z को √7 नहीं. अगर तुम इस एग्जांपल से जाओगे तो XRY एंड YRZ के साथ साथ XRZ भी होल्ड कर रहा है, तो ये एग्जांपल नहीं लेंगे. लास्ट स्टेप में हमने एग्जांपल लिखा है जिससे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ये प्रूव हो रहा है. इन दिस केस XRY एंड YRZ, बट X is not related with Z, बिकॉज जब हम ये वाला केस पुट कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, √2 - 2 √2 + √2 is an irrational number, जो कि गलत बात है बिकॉज ये नंबर 0 बन रहा है. तो 0 is a rational number. तो XRY एंड YRZ यहाँ पे है बट XRZ नहीं है, therefore this relation is नॉट ट्रांजिटिव. और एटलीस्ट वन एग्जांपल सफिशिएंट है ट्रांजिटिव नहीं है ये चीज प्रूव करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट. तो A क्रॉस B जो बनता है वो भी एक सेट ही बनता है. तो लेट्स से सेट A इज, इनफैक्ट हम सेट ऑफ रियल नंबर ही ले लेते हैं या नेचुरल नंबर ले लेते हैं, चलो ठीक है. दैट R इज रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम n क्रॉस n टू n क्रॉस n. अभी तक हमने बात की थी रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट A. तो जो R के एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में थे. अब n क्रॉस n का एलिमेंट खुद ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, तो R का एलिमेंट एक डबल ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, यानी कि 1, 2, 3, 5. ये कंप्लीट. अब एक एलिमेंट है रिलेशन R का, ये वाली बात समझ आ रही है? बिकॉज 1, 2 इस सेट का पार्ट होगा, एक एलिमेंट हो गया, और 3, 5 इस सेट का एक एलिमेंट हो गया. तो यहाँ पे अब रिलेशन ऐसे डिफाइन किया है कि A, B R C, D implies that AD is equal to BC. Tell me whether this relation is symmetric, reflexive, transitive, what? तो इस रिलेशन को थोड़ा सिंपल टर्म्स में लिखने का मीनिंग, सिंपल टर्म्स क्या, कि यहाँ पे सिंस A एंड B एक साथ हैं, C एंड D एक साथ हैं, तो हम यहाँ भी A एंड B को एक साथ कर लें एंड C एंड D को एक साथ कर लें. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि AB R C D
implies that a upon b is equal to c upon d. और आंसर जो बोला गया कि दिस इज ऑल थ्री करेक्ट आंसर है। कैसे कि हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो हम अब यहाँ पे a कॉमा बी आर a कॉमा बी चेक करेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने a और b को सेम नहीं रखा, a और b को तो अलग ही रखा है, बट c और d को भी हमने a और b कर दिया x आर x। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि a अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन b विच इज ऑलवेज ट्रू। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक अब तो आगे समझ आ ही गया होगा। a comma b r c comma d implies that a upon b is equal to c upon d. We can write that c upon d is equal to a upon b. Therefore c comma d are a comma b. तो ये सिमेट्रिक भी हो गया और ऐसे ही ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेट है वो अब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, मतलब सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में सेट गिवन था, तो उसका अपन इस तरह से सॉल्यूशन लिख लेंगे। नेक्स्ट, और तो इसमें कोई खास डिफरेंट क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन, any doubt in this question? No, sir. Next question, relation, पहले तो set A is equal to 1, 2, 3. Relation R is defined such that relation R is equal to x, y such that mod of x square minus y square less than equal to 5. Find domain या find relation. Find relation R in roster form. तुम लोगों ने लिखा गया। सबसे पहले अपन x को 1 पुट करेंगे, तो 1, 1, 1, 2 चेक किया तो 1, 2 भी आ सकता है। 1, 3 चेक किया, नहीं आएगा। फिर 2, 1 एक्सेप्टेबल है, 2, 2 एक्सेप्टेबल है। नहीं, तुमने 2, 2 कई सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे। 1, 1, 1, 2 आ गया, 2, 1 आ गया, 2, 2 आ गया, 2, 3 भी आ जाएगा। फिर 3, 1 नहीं आएगा, 3, 2 आ जाएगा और 3, 3 आ जाएगा।
देखो ये वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन आर में। अभी देखो हमें मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 करना था। तो 1,3 और 3,1 के अलावा जो भी ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब तुमसे मान लो अभी तो चलो हमने रोस्टर फॉर्म में फाइंड कर लिया, but अगर ओरिजिनल क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में ही गिवन होता तो अब इसका आंसर बताना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सी कैटेगरी में आएगा। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमेट्रिक, Yes, sir. Yes. ट्रांजिटिव, No, sir. एग्जांपल बताओ क्यों नहीं है फिर। Sir, 1 to 2 and 2 to 3, but 1 to 3 is not present. करेक्ट कि 1R2 and 2R3 but 1 is not related with 3. और कोई एग्जांपल इसमें मैं देखता हूँ, एक मिनट। ओके, एक इस तरह से है कि relation R is defined set of real numbers except 0. To set of real numbers except 0. R नॉट का मतलब कि 0 को हटाना है। And X R Y implies that X is a multiple का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल of Y. Same question, symmetric, reflexive, transitive. नॉट सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों हैं। ट्रांजिटिव हरी भाव सर ने बोला 99% श्योर रिफ्लेक्सिव है, तो 1% क्यों नहीं है? सॉल्यूशन रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव चेक करना तो So reflexive तो होगा ना sir? होगा ही 100% because x r x implies that x is a multiple of x. बिल्कुल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x, तो x is equal to 1 into x. सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज 6 is multiple of 2, या 6 is equal to 2 into 3. ठीक है, ट्रांजिटिव तुम लोगों ने क्या आंसर दिया ट्रांजिटिव का? नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। Not transitive. So can you show the statement once? स्टेटमेंट है कि x r y implies that x is an integral multiple of y. Okay sir.
x is an integral multiple of y. इसका मीनिंग क्या लेते हो? x divides y completely और y divides x completely? Sir, y divides x completely. तो ट्रांजिटिव रिलेशन है. ट्रांजिटिव कैसे है? हाँ, ये सही बोला है मानस ने. x is equal to ky and y equal to tz is then x is equal to k into t into z. Correct. अगर k and p both are integers, then p into k is also an integer. Therefore, x are z. और लोग एग्जाम्पल यहाँ पे खास है नहीं ऐसा. तो ये अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट है. अभी बोलो रिलेशन में कुछ कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है? जस्ट 1 मिनट वेट करना, मैं एक बार देखता हूँ लास्ट 10 इयर्स में कुछ खास क्वेश्चन पूछा है क्या. जस्ट 1 मिनट है ना. ओके, एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन. इट इज रिटन एज relation R is defined from set of real numbers to set of real numbers x r y implies that x is equal to ky for अब यहाँ पे सम वर्ड यूज करें या एनी वर्ड यूज करें? for some rational number k, or check whether this relation is symmetric, reflexive, transitive, what. नहीं, नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे. अभी अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे. ऑल 3. मेंस का पोर्शन जो है वो 3 क्लासेस का ही है. एक क्लास रिलेशन के लिए, एक क्लास स्टैटिस्टिक्स के लिए और एक क्लास मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए. ऑल 3. अब देखो इसमें यही वाली बात है कि इसका मीनिंग क्या है. फोर मतलब फॉर सम रैशनल नंबर k का मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रैशनल नंबर फॉर विच गिवन कंडीशन इज ट्रू. तो फर्स्ट हमने चेक किया रिफ्लेक्सिव. तो x r x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू k इंटू एक्स. तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1, एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है. तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ढंग से समझना. फॉर सम रैशनल नंबर k का मीनिंग क्या है कि इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रैशनल नंबर फॉर विच गिवन स्टेटमेंट is true, then overall statement will be considered as true. Symmetric, and this relation is not symmetric. Correct. Why? Because 0 r 5 4 k equals to 0. देखो
अगर क्योंकि k तो हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, बस एग्जिस्ट करना चाहिए वो नंबर। तो 0 इज रिलेटेड विद 5 बिकॉज वी कैन राइट दिस 0 इज इक्वल टू 0 into 5, बट 5 is not related with 0 because हम 5 को k into 0, अब k कोई भी रैशनल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा for which 5 is equal to k into 0. Therefore, this relation is not symmetric. Clear है? Any doubt? Transitive ये हो जाएगा x is equal to k1 into y and y is equal to k2 into z. तो यहाँ तो क्या है, सिंपली इन दोनों इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। तो x is equal to k1 k2 into z. If k1 and k2 are rational numbers, then k1 into k2 is also a rational number. तो अभी ये लास्ट वाला एग्जांपल देखो, सब मतलब इसमें यही स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था। फॉर सम रैशनल नंबर के का मीनिंग देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रैशनल नंबर फॉर विच गिवन कंडीशन होल्ड्स। एनी डाउट अभी इन दिस क्वेश्चन? No, sir. चलो फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट है। तुम लोगों के पास मेंस वाली बुकलेट है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें से रिलेशन वाला जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, सेट्स एंड रिलेशन। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? चलो मैं ये अभी तुम्हारे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और इस लेक्चर का लिंक भी और ये पीडीएफ भी, ठीक है? Thank you, sir. चलो बाय। ओके बाय।